If you like to listen great speakers, I hope you have listened that person many times because he is very famous personality. I'm talking about Guru Gaur Gopal Das. He usually used to say these lines in their speech that it is important to get an idea into your mind. But it is also important that idea in your mind, the person are getting that idea. If the person are not getting that idea, what is the use of it? So it's become very important for us to know that what is the level of audience, that what is the level of people. When you are able to know that, you can able to deliver your speech more effectively. And then people will give importance of your speech and importance of your ideas. So welcome to Accent Talk Institute, your most goes to destination for mastering English speaking skill and communication skill. So before starting this first class, I wanted to tell you, if you haven't watched my last video that was about foundation. Foundation means syllabus and content that we will be learning for the next 3 months. So you must watch that video first. From there you will get the basic understanding about this course, the way of learning and the way of applying these communication skill into our personal life. So without delay, without any further delay for this class, let's start today class. अगर जो आपको याद होगा, don't need to worry, we will be speaking हिंदी and इंग्लिश. अगर जो आपको याद होगा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम इस कोर्स को मॉड्यूल बेस्ड पढ़ेंगे, वीक्स वेज पढ़ेंगे और डे वेज पढ़ेंगे. हमने 3 टाइप्स को इसका डिवाइड किया है. मॉड्यूल में देयर आर 20 मॉड्यूल्स हमने बताए थे पिछले में. उसके बाद कितने वीक्स हैं, हर वीक्स में करेंगे और हर एक वीक्स में कितने डेज में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ हमने उस फर्स्ट वीडियो में बताया है. दैट्स वाई इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट वी विल बी लर्निंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ. इससे अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, उससे अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं. तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक जो एंथुसियाज्म की जो कैपेसिटी है, जो जानने की इच्छा है, वो डेवलप होती रहेगी. तो दैट्स व्हाई इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट and you can easily get that video from the description of this video and watch this video. So let's start today class. तो हमने बताया था कि मॉड्यूल फर्स्ट में बेसिक कन्वर्जेशनल स्किल के बारे में बात करेंगे. उसमें हमने बताया था जो वीक फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब एक पहले वीक से दूसरे सप्ताह तक जो पढ़ने वाले हैं, हम एवरीडे इंट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले. वी विल बी लर्निंग अबाउट द एवरीडे इंट्रैक्शन. That's why we have put it day first here, introduction to the greetings. Why we are giving priority to the greeting first? Because whenever you meet to the people for the first time, क्या करते हैं पहले? Greetings तो करते हैं. Good morning, namaste, and another way of greet someone, I don't know. But जब हम सबसे पहले greetings करते हैं तो सबसे पहली क्लास greetings की क्यों ना हो? That is the biggest reason to put this class for the first as a greetings. So before the using of greeting, I would like to tell you about the greeting, that what is greetings. आखिर greetings है क्या? Greetings are the verbal and non-verbal expression to acknowledge someone's presence and express and stabilize the initial talk with the people. एंड अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ग्रीटिंग्स ही वो चीज़ होती हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारा किसी के साथ कन्वर्जेशन या फिर कन्वे करवाने का स्टार्टिंग देती हैं. ग्रीटिंग्स आर द फर्स्ट स्टेप टू स्टेबलाइज अ इफेक्टिव कन्वर्जेशन टू द पीपल. अगर जो हम किसी को अच्छे से ग्रीट करना सीख गए, किसी को अच्छे से रिस्पेक्ट देना सीख गए, पोलाइटनेस सीख गए, तो आप देखेंगे आपको रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने में या फिर उसके फ्रेंडशिप बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही मतलब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलेगी सोसाइटी से. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रीटिंग्स. एंड बिफोर द लर्निंग ग्रीटिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू द बेसिक रूल्स फॉर द इफेक्टिव ग्रीटिंग्स. अच्छा, जब हम ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं उसका हमें कुछ ग्रीटिंग्स करने के तरीके भी होते हैं. सपोज आपसे कहूँ गुड मॉर्निंग,
this is the best way of speaking in front of people, and I am here. I don't know what you're thinking about me. This is not a good way to speak in front of someone. When you are speaking to the people in front of audience, you should be attractive. You should be presence in that in front of them. You should be seeable. वो आपको देख तो पा रहे हो सही से. देखने का मतलब ये नहीं कि आंखों से देखना. देखने का मतलब हुआ कि आपको समझ पा रहे हैं वो, तब तो ये होगा ना. That's why what we have to keep for the effective greetings, we have to maintain eye contact. Eye contact क्या करती है? Eye contact, whenever we maintaining eye contact while we are during the conversation to the people feel that you are connected with them. The people feel that you are giving value to them. That's why we have to maintain eye contact whenever we start conveying to the people. That will make you more important person for that person. Got it? And next thing, that is smile. We don't have to smile all the time. Hey. No. हमें हमेशा नहीं स्माइल करनी, नहीं तो ये आपके कन्वर्जेशन स्किल को वहाँ से लेके यहाँ पटक देगा. नहीं, वी हैव टू मेक अ प्रॉपर स्माइलिंग फेस, नॉट फॉर द ऑल टाइम. जब भी आपको लगे कि हाँ मैं इस क्लू पर हंसना, थोड़ा स्माइल करनी, वहाँ पर करना है. ये हम लोग पढ़ेंगे जब भी अभी आगे नई क्लासेस होंगी, उसमें सब चीज़ें लर्नेंगे. क्या इंटरनेशन होते हैं, क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, किस वे में हमें कौन सा इंटरनेशन एंड मॉड्यूलेशन यूज़ करना है, वो सब हम पढ़ेंगे. तो अभी आपको बेसिक याद रखना है कि जब भी आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब भी किसी से आप बातें कर रहे हो, तो हमको अपने आप को थोड़ा सा स्माइलिंग फेस में रखना होगा, ताकि सामने वाला कम से कम बोर तो ना फील करे. जब आप सैड फेस करके बात करते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा देर तक बात करना नहीं चाहेगा. अगर जो आप उसको एक्टिव दिखते हैं, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ दिखते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे बात करने की इच्छा करेगा. Got it? That's why we have to keep smiling when we are going to interact with the people. And next thing is that use of person's name. It is very important. बड़ों का नाम तो नहीं लेते, लेकिन जब भी आप कभी छोटे से मिल रहे हैं, उसको ग्रीट कर रहे हैं, तो आप उस ग्रीटिंग के साथ उसका नाम लेके देखिए. जैसे गुड मॉर्निंग तनुष, गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग श्वेता, लाइक दिस काइंड ऑफ. जब भी आप किसी का नाम लेते हैं ग्रीटिंग के साथ, तो पर्सन फील करता है कि आप ना उससे थोड़ा सा टच में है, उससे मतलब पर्सनली टच में है. वो फील करता है कि आप हमारे साथ रिस्पेक्टिवली पेश आ रहे हैं, हमको वैल्यू दे रहे हैं. अब बड़ों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन छोटों का जब नाम लेते हैं तो हमको जरूर फील होता है कि हाँ मैं इससे पर्सनली टच हूँ. अच्छा, जब भी क्लास में कोई बैठा होता है, जब टीचर सामने से खड़ा होकर आपका नाम बोल देता है कि स्टैंड अप अनुज, तो इसका मतलब हमें क्या लगता है कि सर हमको जानते हैं, और हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि हमको सर जानते हैं, मतलब हमने थोड़ा पर्सनल टच फील किया ना. दैट्स वाई इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विद द ग्रीटिंग्स व्हेनेवर वी आर ग्रीट समवन. इफ यदि हम आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, अगर जानते ही नहीं तो कहाँ से लेंगे. सो हम उसका नाम लेकर ग्रीट करेंगे, तो ये हमें और इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे होता है किसी के साथ इनिशियल टॉक में बातें करने का. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट बी रिस्पेक्टफुल. डोंट फॉरगेट दिस. कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये अगर जो किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, तो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रिस्पेक्टफुल, टू बी पोलाइट, बिकॉज ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये हमारे पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. When you will be respectful for the person will also be respectful for you. If you are showing politeness towards them, they will also show the politeness to you. That's why we have to be respectful when we are going to meet someone for the first time. Even if you are going to meet someone for the second time, what is the meanest? फिर भी हम रिस्पेक्टफुल रहें. क्या होता है कि किसी को रिस्पेक्ट देना होता है कि अपनी रिस्पेक्ट बनाना. इफ यू वांटेड टू दिस देन डू दिस, इफ यू डोंट वांट टू दिस डोंट डू दिस. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस. सो इट इज फाइन दैट हमको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखनी है, थोड़ी सी स्माइलिंग फेस रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं. हमें किसी पर्सन का नाम लेना है, यदि हम उसका नाम जानते हैं, थोड़ा सा पर्सनल फील करवाता है.
एंड बी रिस्पेक्टफुल, हमको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना है, पोलाइटनेस रहना है जब भी किसी से ग्रीट कर रहे हैं. एंड नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज ग्रीटिंग्स. Greetings are divided into two parts, that is first common greetings and second that is casual greetings. Casual greetings, sorry. You know, even today I am struggling with the pronunciation skill. इंग्लिश बोलनी सीख ली, लेकिन फिर भी अभी भी मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ थोड़ा सा मैं स्ट्रगल करता हूँ. फिर भी मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि नो वन कैन बिकम परफेक्ट. सब में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती, तो शायद मुझ में ये कमी है. बाकी मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितनी जल्दी हो सके सही कर पाऊँ. इफ वी विल कम फॉर द कॉमन ग्रीटिंग्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग ग्रीटिंग्स एज वेल. व्हेन वी मीट समवन इन द मॉर्निंग बिफोर द नून टू एक्नॉलेज समवन प्रेजेंस एंड व्हाट दे आर डूइंग, देन वी यूज टू से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग वट एवर यू. जैसे कि मैंने बताया कि नाम लेकर आप बोल सकते हैं, या फिर स्माइलिंग फेस, आई कांटेक्ट, ये सब करके जब बोलेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है. अच्छा सोचो, अगर जो किसी के मॉर्निंग में ही हम अच्छे से बात कर लेते हैं, उसका सुबह उसकी अच्छी कर देते हैं, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि नहीं होता है. अगर जो आपके एक अच्छे तरीके से बिहेव करने से किसी का दिन पॉजिटिव हो रहा है, किसी की मॉर्निंग अच्छी हो, सुबह अच्छी हो जा रही, तो क्यों ना हम करें भाई. यदि हम किसी को अच्छे से बोलने से अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो क्यों ना करें. दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सनालिटी टू मेंटेन रिस्पेक्ट इन आवर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. गॉट इट. तो जब भी आप किसी से मॉर्निंग में मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हमको गुड मॉर्निंग बोलना है. अगर जो उसका नाम जानते हैं तो गुड मॉर्निंग नाम लगाना है. अगर जो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग करके फिर उसके बाद तुरंत पूछ सकते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम, गुड मॉर्निंग, आई हैव सीन्ड यू समवेयर, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है. ऐसा करके बोलेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बात कर पाएंगे. अच्छा, जब मैं ऐसे बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, आई थिंक आई हैव सीन्ड यू समवेयर, मैंने स्माइलिंग फेस ऐड करा, इसका मतलब वो जब भी हम किसी से मिलते हैं थोड़ा सा गुड मॉर्निंग करेंगे तो उसको लगेगा कि यार पता नहीं क्यों अनजान व्यक्ति फिर भी ऐसे बोल रहा है, राइट. तो उसको ये बताना है कि मैं ना इस स्किल में इस स्किल को जानता हूँ, कैसे किससे बात करनी. गॉट इट. सो व्हेन यू विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्किल, यू विल ऑल्सो बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द पीपल, राइट. सो मॉर्निंग में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिएगा, सुबह से लेकर के जब भी आप 10-11 बजे तक, जब 11-12 बजे से पहले तक. एंड आफ्टरनून, ये हम लोग क्लास फर्स्ट सेकंड में ही सीख लिए, तो हमको इतना डिटेल नहीं बताने की जरूरत है कि आप किस तरीके से कितने बजे से कितने बजे तक ये वाला एक्सप्रेशन यूज, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, क्योंकि ये बेसिक जानते हैं. बट हमें यह क्या सिखाना है कि आखिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग इन अवर पर्सनल लाइफ एंड as the purpose of greeting as a effective communication and effective way of talking to the people. I'm right? So यदि आप मॉर्निंग में मिल रहे हैं गुड मॉर्निंग, यदि आप आफ्टरनून में मिल रहे हैं बीच में भाई 12 बजे से लेकर के 1 वीक के बीच में, तब हम गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं. एंड यदि हम 4-5 के बाद मिल रहे हैं, 4 से 5 के बाद जब शाम का समय होता है, we will be using good evening to maintain a better positive and impactful relationship to the people. So that's become very important to know that what way we are going to greet people. These are the common way of greeting someone. And when we come to the casual way of greeting, there are, एक बात याद रखना, these are the very informal way to greet someone. Basically हम इन greetings का यूज केवल फ्रेंड्स के ही साथ करते हैं. कभी आप सर के साथ हे नहीं करके बात करते, या फिर हेलो करके नहीं बात कर सकते. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा रिस्पेक्टेबल होते हैं. वहाँ पर हमें ये वाली चीज़ मेंटेन रखनी है. We will not be using like, hey sir, what are you doing? Hello sir, how are you doing? No, you cannot use this kind of bloody word for the making impactful relationship for the people. Got it? जब भी आपका दोस्तों के साथ अच्छा पीर है या फिर अच्छा ग्रुप है, जो क्लोज फ्रेंडशिप है, उसके साथ हम हे या फिर हाय या फिर हेलो का यूज करके बोल सकते हैं. एंड यूजुअली वी से व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप बडी, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप अनुज, व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी यूजुअली स्टार्ट.
So these are the basic information about the greetings whenever we meet someone. तो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि किस वे में हम किस तरीके से लोगों से बात करने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल्स की आप फिक्र मत करें। अगर जो आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर एक्सेंट टॉक इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वहाँ पर ये जो पूरी डिटेल में क्लास यहाँ पर बताता हूँ उसका आपको डिटेल PDF मिलेगी, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, किस वे में हम पढ़ेंगे उसको वो भी सब उसमें है। तो आप उसको आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाना होगा, डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर मैसेज करिए, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे और अच्छे से अपने आप को तरीके से पढ़ पाएंगे। एंड इफ़ यू वांटेड टू ज्वाइन माई ऑफलाइन बैच तो यू हैव टू विजिट माई ऑफिस लखनऊ बालागंज एंड नियर मरी माता मंदिर। यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। एक बैच मॉर्निंग में चलती है, एक अभी 3 बजे से चलती है। ये ऑनलाइन बैच मैं 9 o'clock से 9:30 से शुरू करता हूँ। इससे पहले एक ऑफलाइन है, एक इससे शाम में हम 3 बजे से एक ऑफलाइन बैच शुरू करते हैं। तो अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन बैच तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसकी तो फीस है, लेकिन ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसकी कोई फीस नहीं है। बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, आपका डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी चाहेंगे। Definitely after 3 months you will be able to speak English with the confidence, fluency and freedom as well. So thank you so much for watching this video and stay with me for the end of this video, and let's see in the next class and second class, and I will be provide you that what will be the topic in next class. I hope you have enjoyed this class. Thank you so much for watching.